एआई समिट है, भारत का सर गर्व से ऊंचा है, जहां देश विदेश से टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, लोग भी देखने आ रहे हैं और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी यहां आ रहे हैं और सभी इनोवेशन को एप्रिसिएट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी ये पहला फेज है और अगली बार और सशक्त हो जाएगा। वहीं पे मेरी मुलाकात हो रही है एक रोबोट से जो मेडिकल का जो बॉक्स है वो एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पे रख रहा है। हमारे साथ शैलेश है। हाय शैलेश, कुछ बताएंगे आप जियो रोबोट के बारे में, क्योंकि रोबोट और रोबोट डॉग्स की बात हो रही है इस बार बहुत ज़्यादा, तो इसमें क्या खास ऐसा और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? सो दिस इज़ अ जियो रोबोट। यहाँ पे द पार्ट्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. द असेंबली एंड द सॉफ्टवेयर लेयर एक्चुअली वी आर क्लेमिंग वेयर वी हैव डन इट. And the thing is, currently this robot is capable of doing the namaste and wave hand and the pick and place activity, where it can pick up a box from one point and it can place it over there. This is the current application of this robot, and in future we are targeting to integrate this robot as a part of Jio AI homes, where let's say you are wearing a Jio frames, or from your voice assistant you are giving a command, let's say clean your house or create a tea for you. So on your commands it can perform the necessary action for that. ओके, बट एक बड़ी बात ये हो रही है कि अभी मैंने इसका शो देखा आपसे, आपने कमांड दिया, देन ये उठाया, इसने नमस्ते भी किया, एक बॉक्स उठा के दूसरी जगह रखता है और बोलता है कि ये आपकी मेडिसिन है। Correct. लेकिन ये क्या वॉइस कमांड पे भी काम कर रहा है? हाँ, so it has a feature of voice to voice interaction, but right now in this demo scenario multiple people are there, so we wanted to avoid the situation where multiple people can give us different commands at the same time. So for that we are actually currently giving a command through tablet or mobile phone. तो जियो ऐसे कितने रोबोटिक्स डिपार्टमेंट है, कितना खर्च कर रहा है, क्या ये भी आप बता पाएंगे? So actually I am a software developer, so I don't have an idea, but right now we are working on this dedicated humanoid robot. We have multiple robots also with the different versions of it. दिस इज on अ use case. प्रोटोटाइप। Yes, prototype, correct. तो ये कब तक में फाइनल आप लोग का टारगेट है कि हम इसे कर पाएंगे? So our estimation time is around 5 years. So first 5 years. 5 years. So initially we will be targeting to deploy this robot in industries, where we'll do the repetitive tasks like just you saw it, pick and place activity. So we will target and do the regression testing of that. And after we have successfully tested those scenarios in industries, we will be deploying those kind of activities in a home environment. ये माना जाए आप पहले हो इंडिया में इस रोबोटिक मॉडल को लेकर, या फिर और भी हैं आपके प्लेयर हैं जो ये काम कर रहे हैं? Like multiple companies are there, but we are also trying to like work on the same age, and there is a adverb company also. इंडिया it's a लेवल पे part आप of Jio. मतलब ये माना जाए कि एक बड़े प्लेयर हो आप, Yes. लेकिन ये माना जाए कि वैश्विक लेवल में तो बहुत काम हो रहा है, Correct. चाहे मस्क हो Correct. या फिर तमाम कंपनियां हैं जो दावा करती हैं कि हम बहुत जल्द ह्यूमनाइड रोबोट जो है Correct. लेके आएंगे। So this is a future, but right now most of the people are working on testing phase and regression testing, because अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें भी constraint space है, right? You can see the like specific rail we have kept it, so people can't interact that much often, right? So regression testing या prototyping phase में अभी फिलहाल के लिए, after couple of years जब ये टेक्नोलॉजी स्टेबल हो जाएगी, then it will be confident will be deploying this robot in a home environment like that. तो मतलब आप इस रोबोट को बनाने में आपका क्या है योगदान है? शैलेश जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा। अगर मेरा बात करें तो आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, जहाँ पे हम लोग इसके लोकोमोशन के ऊपर लाइक गेट पैटर्न बोलते हैं जिसको, जो ह्यूमन बीइंग की तरह चलने का जो सीक्वेंस रहता है वो ये वीडियो में भी देख सकते हो आप कि पिक एंड प्लेस एक्टिविटी है, राइट? तो इसमें मोबिलिटी का पार्ट हो गया, डेक्स्ट्रिटी का पार्ट हो गया, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग सॉफ्टवेयर लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये ट्रेन करने के लिए एक आप सॉफ्टवेयर से हैं, आप लोग बड़ी टीम होगी जो एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा खतरा भी इसको लेकर बोला जाता है कि कभी ये अनकंट्रोल्ड भी हो सकते हैं, ऐसा भी
आपको क्या लगता है आपके बेसिस पे कि क्या ये अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं रोबोट्स सी देन कभी भी? तो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटी लेवल. तो इनको कमांड जाने के पहले वी आर एक्चुअली व्हेन इट विल बी अवेलेबल फॉर द कमर्शियल यूज वी विल बी मेकिंग श्योर दैट इट पासेस ऑल द गाइडलाइंस. जहाँ पे इन्फोसेक लेवल पे हम लोग जो सिक्योरिटी है गाइडलाइंस उसको पास करें. जहाँ पे कोई भी अगर कोई चाहता है कि अनवांटेड कमांड पास करे इसको तो वो होनी नहीं चाहिए चीज़ें. उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन लेंगे. ओके, वेरी थैंक यू. थैंक यू. और जैसे कि अपना आप देख रहे हैं कि ये एक खूबसूरत सा रोबोट है. हालांकि इसका नाम शैलेश अभी तो नहीं हुआ डिसाइड कि कोई नाम रखा है. दिस इज नॉट अ कमर्शियली अवेलेबल अभी फिलहाल के लिए. फिर भी This आप is just a internal robot. जैसे आपने बोला वॉइस कमांड लेता है, तो आप अपने प्लेटफॉर्म में जब आप इससे बात करते होंगे तो तो हाँ, तो हम लोग हेलो जियो, हे जियो, वो सारी अच्छा। चीज़ों से बात करते हैं. इस तरीके से आप करेक्ट आपस में संवाद करते हैं. करेक्ट. जियो के द्वारा एक ऐसा डॉक्टर बनाया गया है जो एआई है. ये एआई डॉक्टर दावा कर रहा है कि आपके शरीर को हम पहचान लेंगे, जान लेंगे. और चलिए मैं इस मेज़रमेंट पे जा रहा हूँ. ये शुरू हो चुका है हमारा पूरा जांच, और इसके बारे में ख़ास बात आपको बताऊंगा. लेकिन पहले ये स्कैनिंग कंप्लीट हो जाए. ये हमारा जो है रिज़ल्ट बताया जा रहा है कि मेरी बॉडी का जो लिपिड प्रोफाइल है, हार्ट रेट है, हेल्थ मैट्रिक्स है. सॉरी चलिए ये चलेगा नहीं. हाँ ओके, थैंक यू. तो निश्चित तौर पर इसमें ख़ास बात ये है कि ये एक ऐसा कांच है जो हर घरों में होता है. सुबह उठकर पहली बार आप अपना जब चेहरा देखते हैं तो वो सिर्फ़ एक चेहरा देखना नहीं होगा, बल्कि वहाँ जियो आपका चेहरा देखेगा और आपकी बीमारी के बारे में भी बताएगा कि आज बीपी लो है या हाई है, या कुछ क्या क्या लिपिड प्रोफाइल में आपके बदलाव हुआ, प्रोटीन लेवल में क्या हुआ. ये जब मैं अभी इनके ऑथराइज पर्सन से बात कर रहा था तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये फाइनली अभी प्रोटोटाइप है. ये हमने शुरुआत की है, अभी डॉक्टर्स फेज में नहीं गया है. लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि बहुत जल्द ये घरों तक पहुंच होगी और हर घर सुखी रहने के लिए सही जांच पड़ताल यदि हो जाएगी तो एक सही निदान भी उन्हें मिलेगा. यहाँ पे आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, अच्छा स्वास्थ्य हर समृद्ध समाज की नींव है. और निश्चित तौर पर एआई डॉक्टर को मैंने आपको दिखाया है कि जो आपका चेहरा देखकर चीज़ें बताएगा कि आप स्वस्थ हो या नहीं. हम मौजूद हैं जियो के एक बेहद अच्छे जो है स्टॉल पे, जहाँ पे एआई के ज़रिए जो है कुछ ऐसा किया गया है जो महाभारत जैसे एक विशाल ग्रंथ को एआई के माध्यम से कैरेक्टराइज़ किया गया है. आप देख सकते हैं कि ये तमाम कैरेक्टर्स हैं और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे 3D व्यूज़ जो है दिखाया जा रहा है. हमारे पास एक डैशबोर्ड है जिस पे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है. महाभारत एक धर्मयुद्ध ये डैशबोर्ड है, और जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में ये दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं. मैं हिंदी चयन करता हूँ और हिंदी के बाद यहाँ पे देखिए 4 सवाल हैं, जिसमें अब पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल. तो अब इस सवालों में मैं एक सवाल देखता हूँ कि एक सच्चे योद्धा की पहचान क्या होती है. यो आत्मानां जयेतस्य जया सर्वत्र सिद्ध्यति. आप इधर ही शत्रुओं के रथ से नहीं अपने लिखी हाथों से अपने कर्म बल्कि को उस मन की समाप्त कर शांति दूंगी. मिलती होती है जिसने अंततः स्वयं पर विजय पा ली. चलिए, तो अपना आप जैसे आपने अभी सुना कि मन से जीतने वाला जो है सच्चा योद्धा होता है. इसमें यहाँ पे बताया गया है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं
कि कैसे इन सवालों का जवाब जो है एआई दे रहा है, और महाभारत के ही कंटेंट का यूज़ करके एक एआई से नहीं लिखी जाती, बल्कि उस मन की शांति में अंकित है। मन के शांति में अंकित होती है बड़ी विजय। तो ये जो है ख़ास एक स्टॉल पर हम मौजूद हैं जहाँ पे आप सब देख रहे हैं। और आपको बता दूं कि महाभारत एक धर्मयुद्ध जो है हॉट स्टार में और स्टार प्लस में ऑलरेडी ये चल रहा है, जो फुली एआई से बना हुआ है, और फुली एआई से हर कैरेक्टर बना हुआ है, पूरे सेट को डिज़ाइन किया गया है, हर युद्ध को डिज़ाइन किया गया है। मतलब एआई की पावर आप समझ सकते हैं कि महाभारत जैसी एक महान धर्मगाथा को पूरा एआई से बना दिया गया है। हम पहुंचे हैं ये गूगल के एआई क्रिकेट कोच के पास। क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि गूगल ने अब मैदान में उतार दिया है एआई को। अब एआई कोच की तरह आपको जो है गाइड करेगा और आपको बताएगा कि कैसे शॉट मारे जाते हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है, किस तरह आप बैट्समैन बेहतर बन सकते हैं, कैसे बॉलर बेहतर बन सकते हैं। और ये तमाम जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि एआई क्रिकेट कोच है। यहाँ पर जो लोग हैं जो इस एआई समिट पे आए हुए हैं, वो लोग अंदर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अंदर जाके अपने शॉट्स देते हैं। उसके बाद एक रिज़ल्ट आता है कि आपका जो ये प्लेइंग सिस्टम है, जो आपने बैट्समैन के तौर पर वहाँ बॉल खेली है, वो बॉल जिस तरीके से आपने मारा है तो उसमें टोटल कितने रन बना सकते हो। और फाइनली जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। निश्चित तौर पर एआई जितना हम समझते हैं उससे कहीं आगे है। तैयार रहिए तेज़ी से बदलाव के लिए। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर है। तैयार रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। नौकरियों की चिंता छोड़िए, एआई के बदलाव को स्वीकार कीजिए। हमारे साथ इस स्टॉल के देखरेख करने वाले साथी हैं। क्या गुड नेम आपका? मेरा अशोक पेद्दी है मेरा नाम। अशोक जी। हाँ। और ये MPSCDC एआई एप्लीकेशन इन एआई एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में, तो हम मध्य प्रदेश का एक नक्शा देख रहे हैं आप सबके सामने। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से तो दिखा दें आप। और इस पे आपको 2 कलर मैक्सिमम दिख रहे हैं। जो एक येलो कलर है, जैसे आपने बताया है कि येलो कलर जहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ है, मीडियम रेंज पे हुआ है। ग्रीन में मतलब हाई यील्ड हुई है, अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, क्रॉपिंग अच्छी आई है। और जो रेड कलर है, यदि आपको कहीं दिखेगा तो आप समझे कि वहाँ पर जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो कम हुआ है। तो सर थोड़ा सा इस एआई के बारे में बताएं कि MP गवर्नमेंट कैसे इस एआई मॉडल का यूज़ करके जो है किसानों को लाभ पहुंचा रही है। ये फसल बीमा क्लेम्स के लिए यूज़ होता है डाटा। तो हम इनिशियली एवरी सीज़न के लिए डाटा जो फ्री एंड ओपन सोर्स डाटा अवेलेबल है, सेंटिनल का जो सैटेलाइट इमेज अवेलेबल है, वो डाउनलोड करते हर 15 दिन में डाउनलोड करके देखते हैं कि कैसा वो फसल बढ़ रहा है। एवरी 15 डेज़ के अंदर अंदर कैसा बढ़ रहा है। 4 महीने फुल सीज़न का डाटा 4 महीने देखते हैं और उसका हेल्थ कैसा है बता देते हैं। एंड देन उसके साथ हम ये भी लेते हैं कि कहीं पे हेवी रेनफॉल हुआ है इन बिटवीन, जो फसल जाता हुआ एकदम, या हीट वेव्स आ गया है, मतलब अगर खरीफ है तो हीट वेव्स आ गया है, अगर सॉइल मॉइस्चर कितना था, ये सब एक कोलेट करके एक मॉडल बनाया। और हमारा पास एग्जिस्टिंग का जो आर्काइवल में ये यहाँ पे क्या क्रॉप बोया हुआ है, मतलब कैसा था, वो वीट था या पैडी था, वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये सब सिमुलेट करके हम एक AML मॉडल बना दिया है ताकि वो 85% एक्यूरेसी से बता पाएंगे कि कहाँ पे यील्ड कितना होगा। इवन नंबर की भी बात कर रहे हैं तो हम नंबर भी देख सकते हैं कि किस हल्का में, हल्का इज एन इंश्योरेंस यूनिट लेवल है, तो किस हल्का में कितना kg पर हेक्टेयर आ रहा है वो दिखा देगा। और ईच एंड एवरी सीज़न के लिए, रबी खरीफ दोनों सीज़न के लिए। चलिए, तो मतलब कुल मिला के ये समझा जाए कि MP गवर्नमेंट इस मॉडल का यूज़ कर रही है। हाँ। और उन्होंने खुद ही डेवलप कराया है अपने लिए ये मॉडल, या कोई बाहर से आउटसोर्स कर रही, कोई कंपनी उन्हें ये डेटा दे रही है और उनके लिए काम कर रही है? नहीं, हम
खुद MP ACDC से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव आई बिलीव 600-800 लोग हैं, इनबिल्ट टीम भी है, डेवलपर्स भी है, रिमोट सेंसिंग एनालिस्ट भी है, AML डेवलपर्स भी है, खुद इन हाउस टीम है, हमारा ही टीम है और वो काम करके बता देता है और किसी की आउटसोर्स नहीं दिया है। नहीं तो इस पे केवल आप लोग जो डिपेंडेंसी है सैटेलाइट इमेज बस में है या फिर ग्राउंड पे भी जाके डेटा कलेक्ट करते हैं नहीं, आप? डेटा कलेक्ट करते हैं अराउंड 4 लाख या 3-4 लाख आपको दिखा देता हूँ मैं, डैशबोर्ड भी है। Using satellite images and AI-based models, the system identifies the drop in each land parcel and predicts drop given each area. Using departments in एक मिनट the system also generates the integrated into a powerful GIS dashboard for real-time insights, decision making, providing insurance through Pradhan Mantri ये है। फसल बीमा योजना. From sowing verification to yield इसमें एक prediction, डैशबोर्ड है Agri जहाँ पे GIS मिलता है आपको ensures a कितना transparent end-to-end ग्राउंड ट्रुथिंग पॉइंट्स आ रहा है, कहाँ पे लोकेशन के साथ आपको दिख जाएगा। ये टोटल सैंपल कलेक्टेड है 2,36,000। अभी करंट सीजन जो रबी का चल रहा है 25-26 रबी का चल रहा है और ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कितना पॉइंट्स कलेक्ट हुआ है। डैमेज सैंपल है जहाँ पे ये मेंशन किया है वो कि मेरा क्रॉप डैमेज है, ये इतना है और ये आपको इधर मैप दिखेगा अभी थोड़ी देर में वो लोड हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स के साथ दिखेगा। अच्छा, ये वाला 3 तो ये मतलब गवर्नमेंट का तो है ही, मतलब एक यूज़र लॉगिन भी होगा। हाँ नहीं, ये तो मतलब ओपन है, ओपन है, ओपन ओपन है। एवरीबॉडी। गवर्नमेंट का लॉगिन अलग है कि हाँ वो उसके लिए वो यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, हाँ, मतलब हाँ। कुछ चेंजेस हुआ है उनका डिपार्टमेंट में जो कलेक्ट करने वाला है और वो यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और कुछ डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, बल्कि ये ओपन है, एनीबॉडी कैन सी। अभी लोड हो रहा है, देख लीजिएगा ये पॉइंट्स है, ये कहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है दिख जाएगा आपको, और जूम कर लिया तो ये टेक्नोलॉजी ओनली MP में है या हर स्टेट यूज़ कर रहा है, ये मैं समझ रहा हूँ। ये पता नहीं सर, मैं MP में तो है, बाकी स्टेट्स में भी होगा या नहीं होगा मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, तो ये डिपार्टमेंट जो है AI का काम कर रहा है, ये कब से शुरू किया इन लोगों ने और ये प्रोडक्ट मिला, डेवलप हुआ ये? हम 2022 से कर रहे हैं, 2022-23 से कर रहे हाँ, हाँ। हैं फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा मॉडल पहला इट वाज लाइक गिविंग ओनली 70% एक्यूरेसी था, Accuracy। अभी जाके 85-88 तक आने पे आ गया। मैंने जो ग्लास लगाया है ये कोई साधारण ग्लास नहीं है, बल्कि ये एक AI का ग्लास है और इस पे एक कैमरा लगा हुआ है और ये चीज़ों को स्कैन करता है, जिसे इंट्रोड्यूस किया है जियो इंटेलिजेंस में। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जियो के स्टॉल में मिल रही है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ मैं कि जियो, हेलो जियो, मैं जिस पेज को देख रहा हूँ इस पेज पे क्या है आप बताइए। What's the significance? All will be done, right? Directly, but that we already do with the help of मैं जिस प्लेट को देख रहा हूँ उस प्लेट पे क्या रखा हुआ है मुझे प्लीज़ बताएं। इतनी देर में तो आपको रेक्टिफाई कर देंगे। आपको पता है ये क्या है? प्रॉब्लम जो है पब्लिक बहुत सारी है। You can also do live streaming. पूरा बिल्डिंग में आपको AI layer basically with the layer. और ये बता रहा है इनको भी काम। मैं इसको यूज़ करता हूँ अपनी, आप जस्ट फोटो लीजिए, अपलोड कीजिए, तुरंत से उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। इट मस्ट बी वेरी फास्ट एक्चुअली। सर आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है, लेना पड़ता पहले तो फ़ोटो किसी से, कौन सा उसको अपलोड कीजिए। तो एफर्ट 3 एफर्ट मैंने पूछा कि इस प्लेट पे क्या रखा हुआ है और मेरे आँखों में जो ग्लास लगा हुआ है उस ग्लास पे कैमरा है और कैमरे को के द्वारा सेंस किया जा रहा है कि इस प्लेट पे क्या है और देन उसके बारे में कुकीज़ और तमाम चीज़ों को बताया जा रहा है। और ये सर अभी प्रोटोटाइप में क्या, ये अगले 1.5 से 2 महीने में मार्केट में लॉन्च होगा। ये कैमरा वर्जन है, इसमें ऑडियो वर्जन भी आता है जो बिना कैमरे के भी काम कर रहा है, लेकिन उसमें आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि मेरे सामने जो प्लेट पे कुकीज़ रखी है उसका कैलोरीज कितना है, ये मुझे आप बताइए।
अब ये क्या करेगा, कैमरा के थ्रू आप इस प्लेट की तरफ सिर्फ देखिए, वो अपने आप उसका नाप लेगा, उसका साइज़ देखेगा, उसकी विड्थ मोटाई ये करेगा और उससे अंदाज़ा लगाएगा कि ये कैलोरीज कितनी है। सो 2 वर्जन आने वाले हैं, एक ऑडियो वर्जन आएगा जिससे आप वर्बली पूछ सकते हो, कैमरा वर्जन में भी आप वर्बली पूछ सकते हो, लेकिन कैमरा में खासियत क्या है कि वो स्कैन भी करता है इमेज और उससे भी जानकारी लेता है। मेरा पूछने का मतलब एक और भी है कि क्या इससे मैं अपने फ़ोन को कोई कमांड भी दे सकता हूँ? हाँ, आगे जाकर आप इसको आपके फ़ोन में भी कमांड दे सकते हो, बिकॉज हम लोग अभी इमीडिएटली इसको फ़ोन के साथ लिंक नहीं कर रहे, अभी इमीडिएटली हम इसको हमारे ऐप के साथ ही रख रहे हैं, बट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 मंथ्स में आप आपके फ़ोन के बाकी सारे एप्लीकेशन भी इसके अंदर चला सकते हैं। जैसे मैं पूछ सकता हूँ कि आप ये मेरे व्हाट्सएप पे कोई नया मैसेज आया हाँ, है, हाँ, ये इंटीग्रेशन हमारा अभी चल रहा है उनके साथ, तो अगले 3 महीने में जब भी ये लॉन्च इसके होगा, साथ कोलैब किया हुआ है? ये बहुत सारे हम लोग ऐप्स के साथ कोलैब कर रहे हैं, एक्सटर्नल ऐप्स के साथ। जैसे आपने व्हाट्सएप का नाम लिया, जैसे आपने समझ लीजिए कोई भी थर्ड पार्टी है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, एवरी मेल, ये सारे के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन का जो डिस्कशन है वो चल रहा है, वो धीरे धीरे अपडेशन आते रहेगा जैसे जैसे ये जो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा। देखिए डिवाइस यही रहेगा, सिर्फ चेंजेस ऐप में होते रहेंगे। नहीं, जैसे मैंने बोला कि रिकॉर्डिंग करनी है, फ़ोन का रिकॉर्डर, या मुझे जो मुझे दिखाई दे रहा है इसको रिकॉर्ड करो, तो देन आप बोलिए हेलो जियो, स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग। वापस बोलिए हेलो जियो स्टार्ट, हेलो जियो स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग। यहाँ बत्ती जली राइट में आपके, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पर एक बत्ती जली और ये वीडियो चालू हो गया। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और आपको अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करनी है तो आपके यहाँ पर एक बटन है, उसको आप सिंगल प्रेस कर लीजिए, तो ये बटन से बंद हो जाएगा, आप कर लीजिए। और यदि मैं कमांड से बंद करना चाहूँ तो? कमांड से भी ये बंद होता है, स्टॉप वीडियो रिकॉर्डिंग से, बट अभी हमने उसको डिसेबल करा हुआ है, आप इसको बंद कर सकते हैं ऐसे क्लिक करके, बस वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए भी इसको ऑन करने के लिए आप इसको लॉन्ग प्रेस करके भी ऑन कर सकते हो, लेकिन वॉइस कमांड से भी ऑन कर सकते हो। और जैसे आपने वीडियो लिया, ये हमने वीडियो यहाँ से इम्पोर्ट किया, बगल में है which is specific for Indian market. It understands Indian accents and supports Indian languages. थैंक यू समोसा। देखो कई बार खाना खाए मैंने देख के भी आप तृप्ति हो जाती है ना, बोल हो गया। तो कॉल्स विल बी आंसर्ड। यस सॉरी जियो हेडक्वार्टर्स अभी इंपोर्ट करने के लिए रेडी है, अभी इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। इंपोर्ट करने के लिए उसको इंटरनेट पे कनेक्ट करना पड़ता है, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है बिकॉज भीड़ ज़्यादा है, नेटवर्क ज़रा गड़बड़ है। तो कुल मिला के ये समझ सकते हैं आप कि मैंने जो ये आँखों में ग्लास लगाए हैं, एज आ स्पाई कैम तो नहीं कह सकते क्योंकि सारी चीज़ें दिख रही हैं, सारी दिख रही है, और ये इंडिया में जो DPDA एक्ट है हम उसको अवॉइड करते हैं और उसी हिसाब से ये प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे। और मतलब दिन मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, फैमिली के साथ जा रहा हूँ, कोई मुझे साइट दिख रही है और मैं दिन कह सकता हूँ कि जियो स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग, देन वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो जियो ने ये इंट्रोड्यूस कराया है AI के थ्रू, और बहुत सारे जैसे गूगल लेंस आप देखते हो, गूगल लेंस में बहुत सारी इमेजेस हम डालते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो यही कुछ उसी के आसपास ये डिवाइस काम करता है।